Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on information and information industry and how many elements are related to this concept and how they are worked together. We have been discussed in the last lectures. So there are many main topic and subtopic related to this concept, and we are going to talk on this. Now in today's lecture we are going to speak about function of the information industry. So what are the function of information industry and how they work? We have been started in the last lecture, and the remaining some part we are going to take of this topic. Okay, the function of the information industry can be separated broadly into four categories. So if we are looking this point, then we will understand that there are four functions of information industry. First one, production; second one, processing; third one, distribution; and third one, building of infrastructure. Okay, so in this way we can tell of four function of information industry here. In the last lecture we have been discussed on production, then processing, and remaining distributions and building infrastructures remaining. So what is meaning by the production? Already we have been discussed generation or generator of information industry, so in which we discuss on this point how many elements are come under this and which kind of the people, whether it is individual person, whether it is institutions, are come under the generator of information. Okay, the functions of information industry. Okay, so first one is a production, second one is a processing, distribution, processing, distribution, and fourth one is a building infrastructure. Okay, building infrastructure. Okay, so in this way all the four elements we can call it the function of information industry. How they work we should know about that. Production. Okay, so production is nothing but the processing and distributions, building and infrastructures. Okay, so production, processing, distribution, building, infrastructures. So which kind of the things are come under the production?
individual person or institution, okay, are come under these. So individual person, when we talk about that, the writer, then information creator, generator, content writer, authors, lyricist, painter, all kinds of the professional, those who are working in the field of art, and they generate something in a word, in a content, in form of content. All these are called information generator, information producers. Okay, so under this category, individual person are come there. So I have told the many names, many profession like this, and institutions. So which kind of the institution will become there? As example, we can write here author, creator, then content writer, institution, research and development organization, information center, then library. All these are come under production. Okay, so in this way we can discuss on the production here, and it will understand how it work under these categories. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के 4 मुख्य फंक्शन होते हैं, जिनमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 नाम हम देख रहे हैं। तो प्रोडक्शन किस तरह से काम करता है, उसमें इंडिविजुअल पर्सन यानी जो प्रोफेशनल अलग अलग है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन जनरेट का काम करते हैं, प्रोड्यूस का काम करते हैं। एज अ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर हम उनको क्रिएटर बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, और जो प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। तो ये सिमिलर वर्ड है, प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, जनरेशन जिसे हम क्रिएटर बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, और जनरेटर भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग सोर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है। सो वेदर इट इज़ इंडिविजुअल सोर्स और इंस्टीट्यूशनल सोर्स, तो उनमें से कुछ सोर्स इंडिविजुअल लेवल के होते हैं और कुछ सोर्स जो होते हैं वह इंस्टीट्यूशन लेवल के होते हैं, राइट। तो इससे आपके समझ में यहाँ पर आएगा कि प्रोडक्शन किस तरह से काम करता है। ओके, तो इंडिविजुअल, ऑथर, क्रिएटर, कंटेंट राइटर और इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पल यहाँ पर देखने के बाद हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि प्रोडक्शन कैटेगरी किस तरह से काम करती है, फंक्शन किस तरह से काम करता है, और इसमें प्रोड्यूसर कौन कौन होते हैं। ओके, तो इसमें और भी एलिमेंट्स प्रोडक्शन के अंदर आ सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन जनरेट का काम करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने केवल 2 घटक देखा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसे हम सोसाइटी बोलते हैं, वह भी कैटेगरी इसमें आ सकती है इंफॉर्मेशन जनरेटर करके। ओके, और फिर अलग हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी इंफॉर्मेशन जनरेटर का काम कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पे अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है। तो हमें तुरंत इसके बारे में पता चलता है कि प्रोडक्शन किस तरह से काम करता है, फंक्शन। और फिर आता है प्रोसेसिंग। तो जैसे हम यहाँ पर
इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री. बट इफ वी आर टेक एग्जांपल ऑफ अनदर इंडस्ट्री, processing is come there, and production processing is the most important thing. After the production, processing is most important thing. If we are take example of library, so both are most important there, production as well as processing. Okay, so instead of production we are taking their acquisitions. Okay, acquisition matlab we can buy the different type of sources, information sources from the producer or intermediary organization, distributor in the library. Okay, so that's why in library acquisition is come there, and after acquisition the book, after purchasing the book, we process them. त्यांना आपण काय करतो, मग प्रोसेस करत असतो. तो इस तरह से एक्विजिशन के बाद प्रोसेसिंग आता है. तो प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी प्रोसेस में फर्स्ट हम उसकी एंट्री एक्विजिशन रजिस्टर में करते हैं, क्योंकि हमने वो बुक परचेस किया. सपोज हमारा एक्विजिशन रजिस्टर 5000 तक लास्ट एक्विजिशन नंबर है. फिर आगे की जो बुक्स होगी 5001, 5002 के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे रजिस्टर करेंगे. पहली क्रिया ये होती है आफ्टर परचेजिंग और एक्विजिशन द बुक्स. फिर वो बुक सेल्फ लगाना है हमको, सेल्विंग करना है, तो उसमें क्या क्या आता है. तो अकॉर्डिंग टू सभी जो प्रोसेस है हम उसकी करने वाले हैं और करते हैं. जैसे कि बुक पॉकेट लगाना और उसको क्लास नंबर देना, क्लासिफिकेशन नंबर देना, बुक कार्ड लगाना आगे. ओके, और फिर इश्यू रिटर्न स्लिप लगाना आगे. तो इस तरह से कई सारी प्रोसेस हम करते हैं. और बारकोड रहेगा, ऑनलाइन यूज होगा तो उसका बारकोड भी हम करते हैं. तो एक्विजिशन के बाद प्रोसेसिंग इस तरह से हम लाइब्रेरी में करते हैं. ठीक उसी तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग का इम्पोर्टेंट है. ओके, तो प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, फिर पैकेजिंग, रिपैकेजिंग, ओके, ये सारी बातें उसमें आती है. ओके, पैकेजिंग मतलब क्या, आफ्टर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट बाय द कंपनी, whether it is information industry or whether it is non-information industry. We are talking here information industry, but those industries not related to the information industry, we call it non-information industry. तो नॉन इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज आती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, प्रोडक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री. जैसे हमने देखा था दो प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड. तो प्रोडक्ट बेस्ड सभी इंडस्ट्री प्रोडक्शन करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट आता है प्रोड्यूस होके उसको मार्केट में लाया जाता है. तो मार्केट में लाने से पहले उस पर प्रोसेस की जाती है. तो उसमें पैकेजिंग है, रिपैकेजिंग है, ओके, बारकोड वगैरह, कैटेगराइजेशन, सभी प्रकार के प्राइस वगैरह और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सभी प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है, एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सभी जानकारी हमें उस प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट पर देनी पड़ती है. ओके, तो ये सारी क्रिया जब हम करते हैं तो उसको पूरी प्रोसेस को प्रोसेसिंग बोलते हैं. ओके, तो ये भी आपके यहाँ पर समझ में आया होगा. तो इसलिए इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री हो चाहे नॉन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री हो, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो, सर्विस में तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट जनरेट करके, प्रोड्यूस करके, उसको
प्रोसेस करके रिपैकेजिंग करके मार्केट में बेचते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें पैकेजिंग और रिपैकेजिंग यानी प्रोसेसिंग को बड़ा महत्व है। ओके, तो प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और कस्टमर लेते समय पैकेजिंग देखता है, वो पैकेज पैक किया हुआ है या लीकेज है या फटा हुआ है, ये सभी चीज़ें एक्सपायरी डेट क्या है, सभी जानकारी कस्टमर प्राप्त करता है, फिर बाद में प्रोडक्ट को खरीदता है। तो जैसे प्रोडक्ट बेस प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करके उसे प्रोसेसिंग करके पैकेज करते हैं, पैक करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। ठीक उसी तरह से इंफॉर्मेशन को भी हम वैसे ही ट्रीट करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है तो प्रोड्यूस कौन करते हैं? फिर अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल जो ऑथर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं, पेंटर होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन इसमें आते हैं। इंस्टीट्यूशन लेवल पर रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंफॉर्मेशन सेंटर, लाइब्रेरीज, रिसर्च सेंटर्स, सभी प्रकार के जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन को भी रिपैकेजिंग या प्रोसेसिंग किया जाता है, मतलब उसका पैकेजिंग किया जाता है। जैसे कि बुक मटेरियल में हमें वह पब्लिश करनी है या स्टोर करनी है, या नॉन बुक मटेरियल में हमें वह स्टोर करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स वहाँ पे चूज किया जाता है, फिर वह प्रॉपर सोर्स में वह इंफॉर्मेशन पैकेज की जाती है। जैसे कि डिटेल्स इंफॉर्मेशन हो, इलिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन तो इंसाइक्लोपीडिया में पैक करते हैं, और प्लेस जोग्राफिकल रिलेटेड हो तो अल्मनेक में पैक करते हैं वगैरह, अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस। करंट हो तो करंट बुक में, ईयर बुक में हम वह पैक करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की है तो उस प्रकार के सोर्स में वह इंफॉर्मेशन हम पैक करते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस होती है, और प्रोसेस करने के बाद पैक तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। फिर मार्केट में जब हम जाते हैं, और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? पूरा पब्लिकेशन करते हैं अलग अलग, फिर चाहे वो इंडिविजुअल पब्लिकेशन हो या इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन हो। ओके, तो फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, फंक्शन किस तरह से काम करता है। ओके, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, फिर उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशंस ये समझ में आना चाहिए कि हाउ इट वर्क, बिकॉज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज distribution is also most important here, because after productions, after processing, if we do not distribute the product to the customer, whatever information want or desired information want to the customer, then what is the use of product? There is no use, and no any kind of industry will work without the distribution system. तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री हो या नॉन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री हो, वह काम नहीं कर सकती, क्योंकि there is a lot of distance from industrial area and market area and residential area. तो इसमें जो अंतर होता है वह ज़्यादा होता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं।
एरिया और मार्केट एरिया और रेसिडेंशियल एरिया। तो तीनों में यहाँ पर एक अंतर हमें दिखाई देता है। इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, औद्योगिक वसाहत जिसे बोलते हैं हम, तो हर सिटी के बाहर होता है, वो बीच में नहीं होता, क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार की जो पोल्यूशन होता है, ध्वनि पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया सिटी के बाहर होते हैं, बीच में नहीं होते। उसे एमआईडीसी हम बोलते हैं। तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि एमआईडीसी जो एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया, वो हमेशा सिटी के बाहर होता है। तो कस्टमर डायरेक्ट सिटी के बाहर जाके कंपनी से प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते, और ये उनके लिए सूटेबल नहीं है और कंपनी के लिए भी सूटेबल नहीं होता। एक एक व्यक्ति वहाँ पर जाएगा कंपनी में, तो हर एक व्यक्ति को कंपनी एंटरटेन नहीं कर सकती, क्योंकि उतना समय उनके पास नहीं होता। तो कंपनी क्या करती है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को चूज करती है उनके अकॉर्डिंग, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी को इनवाइट करती है और अपॉइंट करती है, और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। ओके, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, इंडस्ट्री से एक होलसेल में कम प्राइस में प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उससे कम प्राइस में माल खरीदते हैं, और फिर उससे माल को लाकर, इंडस्ट्रियल एरिया से माल को लाकर, प्रोडक्ट्स को लाकर मार्केट में बेचते हैं। ओके, तो इनके बीच एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है, इंडस्ट्रियल एरिया टू मार्केट एरिया। ओके, यहाँ पर दी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो इस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया से जो प्रोडक्ट्स होता है, माल होता है, वह मार्केट में आता है। लेकिन मार्केट में जो माल आता है वो मार्केट में डायरेक्ट कस्टमर नहीं जाता, मार्केट में भी नहीं जाता। तो ये होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उसे हम होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर। और फिर मार्केट से रेसिडेंशियल प्लेस तक, एरिया तक, वहाँ से जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वह माल उठाते हैं मार्केट से, और फिर रेसिडेंशियल एरिया में लाकर बेचते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस कम प्राइस में होलसेलर लेते हैं, और फिर उसमें थोड़ा मुनाफा कमा के, बेनिफिट कमा के, फ़ायदा करके वह मार्केट में बेचते हैं। फिर यहाँ पे रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, वह क्या करते हैं, मार्केट से माल उठाते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं, और फिर रेसिडेंशियल एरिया में बिकते हैं या बेचते हैं। ओके, तो इसमें भी इनका कमीशन होता है, मार्जिन होता है। तो इस तरह से कंपनियों से, इंडस्ट्रियल कंपनियों से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर जिसे हम बोलते हैं, वो माल उठाते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। और मार्केट से रिटेल जो डिस्ट्रीब्यूटर है, छोटे मोटे रिटेल यानी कि छोटे मोटे घाऊक व्यापारी जिसे हम बोलते हैं, होलसेलर यानी कि बड़ा व्यापारी। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। तो ऐसे रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर फिर मार्केट से माल रेसिडेंशियल एरिया तक पहुंचाते हैं और वहाँ जाकर बेचते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो this is not exception for our information industry also, and this happen in same regarding the non information industry also। तो हम यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो यही सेम दिस हैपन विद द नॉन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। और नॉन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में जब हम बोलते हैं तो उसमें कई सारी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ आती है। ओके, तो आप समझ सकते हैं नॉन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री
कि जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है लेकिन अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरह से काम करता है, उसमें होलसेल जिसे बोलते हैं होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आते हैं और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से काम करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और we can identify how this function is work in case of information industry. Okay, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से काम करती है, इंडस्ट्रियल एरिया, मटेरियल मार्केट एरिया और रेसिडेंशियल एरिया। ओके, ये आपके समझ में आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन का हम हमारे एग्जाम्पल के बारे में भी यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री होती है। ओके, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का चलता है, राइट। तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री अलग अलग लेवल पे काम करती है, जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे पब्लिकेशन का उदाहरण दे सकते हैं। तो पब्लिकेशन आर इनवाइटेड टू द कंटेंट क्रिएटर्स, the information producers, information generator to write something for their publication, to write something on their subject, and many producer generators are accept this invitation. Okay, and after that the process of content creation, information generation is started there. तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जनरेशन और इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन का काम वहाँ पर स्टार्ट होता है। ओके, और फिर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस के बाद किस सोर्स में उसे प्रोड्यूस किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, पब्लिश होता है बुक्स, और फिर उसको पैक किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन के पास भेज दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ओके, तो जो कस्टमर होते हैं, यूजर होते हैं, रीडर होते हैं, वो डायरेक्ट पब्लिकेशन के पास जाकर बुक खरीदी नहीं करते। कुछ ऐसे पब्लिकेशन के जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, तो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके पास से हमें ये बुक खरीदना पड़ता है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक एजेंसी होती है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, वह कम प्राइस में पब्लिकेशन से बुक्स परचेस करती है और हमें ज़्यादा भाव मार्केट में लाके बिकती है। और कस्टमर वहाँ पे भी जाके रिटेल शॉपकीपर होते हैं और डीलर होते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, वहाँ से हम बुक परचेस करते हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में पब्लिकेशन का एक एग्जांपल देकर हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से काम करता है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन और एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सा एग्जांपल? जो हम लाइब्रेरी का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर में काम करते हैं, रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में काम करते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इंफॉर्मेशन जनरेशन का काम होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग न्यू and they are doing, all people are engaging for doing the research और research activities। तो सभी प्रकार के जो स्टाफ होते हैं वहाँ पर, स्कॉलर, साइंटिस्ट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन में, वह हमेशा रिसर्च में डूबे होते और रिसर्च करते समय अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। और लाइब्रेरी में भी जो इंफॉर्मेशन हम परचेज करते हैं, यानी कि बुक की फॉर्म में, नॉन बुक मटेरियल की फॉर्म में, और वह हम लाइब्रेरी में रखते हैं। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर करके हम यूजर को
इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यूजर और जो क्रिएटर होते हैं, ऑथर होते हैं, और जो पब्लिकेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, उनके बीच हम एज अ मेडिटेटर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करते हैं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ लाइब्रेरियन करके। तो एक उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं। पहला उदाहरण हमने पब्लिकेशन का लिया, दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पर लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर का लिया। तो हम किस तरह से एज अ मेडिटेटर का रोल प्ले करते हैं यूजर और इंफॉर्मेशन जनरेटर के बीच या इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बीच। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जब हम बोलते हैं तो हमारा एग्जांपल वहाँ पे आप ध्यान में रखना, लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन का, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सेंटर का, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका करते हैं। जो भी यूजर लाइब्रेरी में आता है तो उनको हम अकॉर्डिंग टू देयर नीड हम उनको बुक प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर वो इंफॉर्मेशन रिसीव करके उनका सेटिस्फैक्शन होता है और वो हमें फीडबैक के स्वरूप में कमेंट देते हैं या फीडबैक छोड़ देते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके हम रोल प्ले करते हैं। लेकिन पब्लिकेशन और लाइब्रेरी, इनके बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी होती है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा अभी, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहला जो होता है वह क्या होता है, लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरी। ओके, तो दोनों जगह पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मेडिएटर का रोल प्ले करता है, तो उसमें आता है पब्लिकेशन। ओके, और दूसरा है यूजर। तो उसमें लाइब्रेरी एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करके काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करती है। ओके, तो यहाँ पर पब्लिकेशन एक आता है, यूजर एक आता है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच लाइब्रेरी करती है, क्योंकि पब्लिकेशन से बुक्स लाइब्रेरी में आते हैं और लाइब्रेरी यूजर को देती है बुक्स। पब्लिकेशन से हम बुक परचेज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन से हम बुक पब्लिकेशन परचेज करते हैं, लाइब्रेरी में रखते हैं। और लाइब्रेरी में काम करने वाले जो भी प्रोफेशनल होते हैं, स्टाफ होता है, वह यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। तो इन दोनों के बीच, इन बिटवीन टू, library play important role as a distributor, and that is why library is a part of distribution system. तो लाइब्रेरी को हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो पब्लिकेशन, ओके, और डिस्ट्रीब्यूटर, इनके बीच होता है, उनके बीच लाइब्रेरी आती है। तो पब्लिकेशन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पब्लिकेशन से डिस्ट्रीब्यूटर बुक परचेज करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर लाइब्रेरी को बुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों के बीच अलग डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये अलग, ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग और नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग। तो दो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऊपर के लेवल के पब्लिकेशन और लाइब्रेरी के बीच एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी होती है, वह पब्लिकेशन से बुक उठाकर लाइब्रेरी में बेचती है या दे आर सेलिंग टू द लाइब्रेरी। ओके, लाइब्रेरी उनसे बुक परचेज करती है। तो ये ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ। और नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फिर लाइब्रेरी पब्लिकेशन या
डिस्ट्रीब्यूटर से बुक परचेस करके सब प्रोसेस करके वो लाइब्रेरी में रखती है और फिर वह यूजर को देती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और नीचे का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अलग है। ओके, तो इसमें भी आपको ध्यान से देखना होगा कि किस तरह से लाइब्रेरी प्ले एज इम्पोर्टेंट रोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम लाइब्रेरी किस तरह से करती है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम इतना सकुल से क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो लाइब्रेरी एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ये हमें यहाँ पर समझना है। और एक्चुअल जो रोल है लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, जिसे हम पब्लिकेशन बोलते हैं, ओके, और चाहे अलग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स की, तो उनके बीच और यूजर के बीच एज अ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो पब्लिकेशन के द्वारा किस प्रकार की नई इंफॉर्मेशन मार्केट में आई है, रिसर्च और इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा किस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, वह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम लाइब्रेरी करती है। तो इस तरह से एक हमेशा ध्यान में रखना, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के 4 फंक्शन होते हैं। उसमें प्रोडक्शन आता है, दूसरा प्रोसेसिंग आता है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन आता है और चौथा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। यदि प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो, क्वांटिटी अच्छी हो, और उसकी अच्छी तरह से प्रोसेसिंग की हो, लेकिन इंडस्ट्री एरिया से माल ही नहीं कोई उठाएगा तो वह ग्राहक तक नहीं जाएगा। ओके, और यदि इसमें डिले हो गया तो उस माल का जो महत्व है, उस प्रोडक्ट का जो महत्व है वह ख़त्म हो जाता है और उसके बारे में एक नेगेटिव फीडबैक हम एज ए कस्टमर करके देते हैं। जैसे कि कोई ऑनलाइन ऑर्डर हम करते हैं, तुरंत आया तो हम अच्छा बोलते हैं, अच्छी सर्विस है आपकी, ओके, और फिर यदि वो प्रोडक्ट लेट आ गया तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें टेंशन आता है और हम उसकी चिंता करने लगते हैं। और आया तो आया, अच्छी तरह से नहीं आया, सर्विस अच्छी नहीं दी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो फिर हम उसके रिगार्डिंग नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो या नॉन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो, तो विदाउट वेस्टिंग एनर्जी, विदाउट वेस्टिंग मनी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, if we will provide, if we will distribute the product on the time to the customer, then customer will be satisfied। तो कस्टमर को वहाँ पे समाधान प्राप्त होने वाला है, अच्छा लगने वाला है। ओके, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड डिस्ट्रीब्यूशन the main function of information industry। तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का मेन फंक्शन का रोल प्ले करने का काम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करती है। और फिर उसके बाद बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आता है। तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है, ये फंक्शन किस तरह से काम करता है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का। यदि कोई भी इंडस्ट्री हम जब फॉर्मुलेट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके एक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, सिस्टम होती है। यदि
वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर वह इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। जैसे कि यूट्यूबर आप कई सारे वीडियो देखते हैं और देखेंगे द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनी, तो अलग अलग कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वीडियो आप देख सकते हैं। और कंपनी किस प्रकार की प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया जाता है। जैसे कि लाइब्रेरी होगी तो लाइब्रेरी अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मिल्क डेयरी होगी तो मिल्क अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। ओके, पब्लिकेशन होगा तो पब्लिकेशन अकॉर्डिंग हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन सेंटर हो, रिसर्च सेंटर हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है या बिल्डिंग बनानी पड़ती है। बिकॉज प्रोडक्शन, वॉट एवर प्रोडक्शन यू आर गोइंग टू डू, इट इज डन इन पर्टिकुलर प्लेस, इन पर्टिकुलर विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो तो वह एक जगह पे, एक स्थान पे ओके प्रोड्यूस होता है और विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, तो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के अविभाज्य भाग है। आप उसे बिल्डिंग कहो या इंफ्रास्ट्रक्चर कहो, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स वी कांट प्रोड्यूस एनी काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि हमें क्लास चलाना है तो उसके लिए हमें रूम आवश्यकता है, उसके लिए सेटअप आवश्यकता है, और डिजिटल बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है। ऑनलाइन करना है तो फिर सब सिस्टम वहाँ पर होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी कि फैसिलिटी, ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स ओके पार्ट्स शुड बी अवेलेबल देयर। सभी प्रकार की सुविधा, सोई सुविधा वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, फिर चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, के हार्डवेयर में हो। तो जैसे कि हमें लाइब्रेरी यदि बनानी है तो वी शुड प्रिपेयर द बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं। तो हम बनाते हैं और उस तरह से फंक्शन वहाँ पे चलता है। तो हमारा जो कंपनी होता है, इंडस्ट्री होती है हमारी, इंडस्ट्री जिस प्रकार की इंडस्ट्री है तो उस प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तैयार करते हैं ताकि स्मूथ फंक्शन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का हो सके या कोई भी इंडस्ट्री का हो सके। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले इम्पोर्टेंट रोल स्मूथ फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मदद करता है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में जाना और कितने फंक्शन इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, ये भी हमने यहाँ पर देखा। हेल्प टू smooth functioning, okay, and which kind of the elements are come there, कौन से elements उसमें आते हैं ये भी हमने यहाँ पर देखा। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है फिर आप सबको पता है कि उसमें हार्डवेयर भी आ सकते हैं, पार्ट्स आ सकते हैं, फर्नीचर आता है और प्रोडक्शन की अलग अलग जो सामग्री है वो सभी उसमें आती है, राइट। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के फंक्शंस है चार मुख्य, उस पर हमने यहाँ पर चर्चा की और ये किस तरह से काम करते हैं ये जानने का यहाँ पर प्रयास किया। और इस बात को समझाने के लिए कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल
हमने यहाँ पर दिए, उसके द्वारा आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के कितने फंक्शन होते हैं, हाउ मेनी फंक्शन आर देयर ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एंड हाउ दे वर्क according to the function, and which kind of the system will require to do function of information industry। इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर सविस्तर चर्चा की और हमारे ओन लैंग्वेज में अलग अलग एग्जाम्पल देख के जो पढ़कर इंटरप्रिटेशन करके ये हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से और इस डिस्कशन के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यानी क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग बाय इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एंड वह किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में जानने का प्रयास किया। सो यू कैन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक। देयर इज नो नीड टू रीड the paragraph one by one to understand the function of information industry. If you are just look or go through this flow chart, then overall concept you will understand immediately there. And I don't say that you don't read again, you can read, but if you want to save your time and if you want to avoid the revision again and again to remember of your topic, particular topic, so it is better thing that you should write the topic after understanding in flow chart। यदि टॉपिक समझने के बाद उसका रूपांतरण आप फ्लो चार्ट में कर देते हो तो आप जस्ट एट ग्लांस ग्लांस में पूरा टॉपिक को समझ सकते हैं, फिर उसे फिर से रिपीट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लाइन टू लाइन जब हम पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए हमें और समझने के लिए कुछ समय जाता है, ओके, एक कंसेप्ट का। लेकिन जब हम उस कंसेप्ट को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे देखने के बाद तुरंत हमें ध्यान में आ जाता है कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन का समावेश है, ओके। सो इन दिस वे वी कैन टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। सो यू कैन रीड एट होम दिस paragraph। Now we are going to discuss on the next topic, role within information industry। तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का रोल क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, ओके। So individual and companies that perform production function work primarily to change large amount of data into information. In data mining, for example, very large store of data are manipulated and examined in order to generate report and profile that identify the explained broad trends। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस के द्वारा huge amount of data after process we produce raw data and raw data convert into the information। तो इसमें क्या होता है, रॉ डेटा और जो डेटा पे हम प्रोसेस करते हैं तो उसकी अमाउंट ह्यूज होती है, वो बड़ा होता है।
लेकिन प्रोसेस करने के बाद उसका स्वरूप छोटा हो जाता है। ओके, जैसे कि एक बुक यदि हमें लिखना है किसी टॉपिक पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत बड़ा रॉ मटेरियल जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम 10-12 सोर्सेस पढ़ते हैं और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो बड़ी मात्रा में वह इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। फिर उनमें से सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हम बुक में इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम उसका कैटेगराइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, फिर फ्लो चार्ट में उसका रूपांतरण करते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं एनालिसिस करके, डेटा माइनिंग करके। ओके, तो उसका जो स्वरूप होता है छोटा हो जाता है और फिर उसके स्वरूप के अकॉर्डिंग वह हम बुक पब्लिश करते हैं। तो इसलिए डेटा माइनिंग को यहाँ इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो डेटा पहले जो डेटा हम लेते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होता है, तो उसकी जो अमाउंट होती है, मात्रा होती है वह लार्ज होती है। और फिर प्रोसेस करने के बाद डेटा माइनिंग जिसे हम बोलते हैं, डेटा माइनिंग करने के बाद, डेटा एनालाइज करने के बाद उसका जो स्वरूप है छोटा हो जाता है और फिर उसका रूपांतरण हम अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। So survey, census and other type of data collection do similar thing on smaller scale. Numerical data are generated, gathered and the result tabulated. तो इस तरह से सर्वे और सेंसस के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। वह डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के स्वरूप में होता है। और डेटा कलेक्ट करते समय स्मॉल स्केल पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल लेवल या इंडिविजुअल मास टू मास लेवल पे जाके, होम टू होम जाके डेटा इंडिविजुअल लेवल पे करते कलेक्ट। और फिर जब हम कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते, तो उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और फिर मात्रा बढ़ने के बाद हम डायरेक्ट उसका यूज और यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। ओके, और फिर बाद में पूरा काम खत्म होने के बाद, सर्वे खत्म होने के बाद, सेंसस की प्रक्रिया प्रोसेस पूरा होने के बाद उस डेटा का हम एनालाइजेशन करते, डेटा माइनिंग करते, कैटेगराइजेशन करते, ऑर्गेनाइजेशन करते। फिर उसका जो स्वरूप है छोटा हो जाता है और फिर उससे हम कुछ डिसीजन लेते, निष्कर्ष निकालते, रिजल्ट निकालते हैं। ओके, तो ये सभी प्रोसेस इसमें आती है। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री and the role of information industry. So in addition, data are changed into information by being arranged into database. So there are other kinds of information production such as authoring and illustrating. This creative process generate information objects such as books and journals, articles. तो इसमें सभी प्रकार की प्रोसेस आती है और सभी प्रकार की प्रोसेस किस तरह से हम करते हैं ये हमने कई बार जानने का प्रयास किया। इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से घटक समावेश होता है। तो दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड in information processing perform tasks that change information object into organized collection or package that are suitable for distribution. One important task is publishing, which can means aggregating article together to form coherent journals or editing assembling a book. तो यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे कि हमने अभी इस पर चर्चा की कि पब्लिकेशन किस तरह से होता है, चाहे वो बुक का हो या जर्नल का हो। तो इसमें किस प्रकार से इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, उस पर प्रोसेस कैसे होता है, डेटा माइनिंग किस तरह से किया जाता है, फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, किस तरह से
किया जाता है, ये हमने यहाँ पर सविस्तर चर्चा की। Once information has been published, second level of processing take place. इंफॉर्मेशन पब्लिश होने के बाद सेकंड लेवल और स्टेज जो आता है वो प्रोसेसिंग का आता है, which place documents or their representation into organized forms. For example, indexers or abstractor generate. Okay. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम होता है। दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन जनरेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, यहाँ पर केवल एग्जांपल दिए हैं पैराग्राफ में, और ये एग्जांपल हमने ओरली हमारे ओन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग चर्चा की। इस पर पब्लिकेशन का एक एग्जांपल लिया और लाइब्रेरी का एग्जांपल लिया, इंफॉर्मेशन सेंटर का एग्जांपल लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका एक एग्जांपल लिया। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल है उसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, उसका रोल क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यानी क्या होता है, उसका फंक्शन किस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और उसका इंफॉर्मेशन रोल क्या होता है, इसके संबंध में हमने यहाँ पर सविस्तर से चर्चा की। और अधिक जानकारी आप इंटरनेट के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जो डिटेल्स हमने यहाँ पर देखे, जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी, उसके संदर्भ में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की फंक्शन क्या होते हैं, उसका रोल क्या होता है, इसके संदर्भ में चर्चा करने के बाद इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के जो इशू है और फ्यूचर है, इसके संदर्भ में भी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, ताकि एक पूरा टॉपिक हमारे समझ में आए कि किस तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का स्वरूप होता है, हाउ मेनी पार्ट्स आर वर्क अंडर दिस industry, and what are the functions of this industry, and what is the role of this industry, and what are the issues and future of this industry. But here we will take short break, and after that we will start again. Thank you. So what are the issues and future of information industry? We are going to talk about this topic. As the information economy becomes increasingly global, there are numbers of factors that affect the use and transmission of information. And the global environment is characterized by extreme fluidity, context of information use change continually. The information to be shared is the heterogeneous in language and in content. People save, organize and use information different language, cultural context. Okay.
increasing numbers of information sources lead to information overload. ओके, तो यहाँ पर आप अलग अलग बातें देख सकते हैं कि किस तरह से इश्यूज एंड फीचर यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ और क्या इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। ये ऐसा है, इट इज़ कॉल्ड ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का महासागर हम इसे कह सकते हैं। और महासागर के बारे में जब हम बोलते हैं तो एज ए इंडिविजुअल लेवल पे हमारी प्यास कितनी होती है हमें पता होता है। तो पूरा जो सागर होता है, महासागर होता है, वह हम छोटी सी घाघर में नहीं समा सकते और हमें कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो तो पूरा सागर हम पी नहीं सकते। तो देयर इज़ अ लिमिटेशन एट इंडिविजुअल लेवल पर ये लिमिटेशन होता है। ठीक उसी तरह से इंफॉर्मेशन हर मोमेंट पे, हर क्षण में इतनी लार्ज मात्रा में जनरेट हो रही है तो इसका हमें पता भी नहीं चलता। तो जिस तरह से सागर को एक अपनी घाघर में लेना असंभव है, ठीक उसी तरह से इस सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत, इशू हमारे सामने क्रिएट हो जाता है कि हाउ वी कैन हैंडल द इंफॉर्मेशन, हाउ वी कैन प्रोसेस ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ वी कैन मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज जनरेटेड with the help of millions of sources। तो millions और billions of sources के द्वारा ये जो इंफॉर्मेशन जनरेट की जा रही है, तो इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि जो इंफॉर्मेशन की हमें नीड है उसका ही हम यूज कर सके। तो ये बड़ी दिक्कत हर एक व्यक्ति के सामने है, हर एक संस्था के सामने है, हर एक देश के सामने है। ओके, ये पहला इश्यू हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा इश्यू हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का होता है। जैसे कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में ऑथेंटिसिटी नहीं होती, वेदर इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट ऑथेंटिक। जो इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन सोर्स से लेते हैं वह ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक, ये हम चेक करते नहीं कभी और उसका यूज़ करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा इश्यू कॉपीराइट का होता है। कुछ सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पब्लिश की जाती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को उठा के अपने नाम पे डाल देते हैं या अपने अकाउंट पे डाल देते हैं या ऑनलाइन पब्लिश कर देते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी मेंशन नेम, विदाउट फॉलो द रूल्स ऑफ कॉपीराइट। तो फिर ऐसी जो इंफॉर्मेशन है पास होती जाती है वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन। तो इसमें क्या होता है, ओरिजिनल जो सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, जनरेटर या प्रोड्यूसर, ऑथर हम जिसे कहते हैं, तो पीछे पड़ जाता है और कई बार हमें पता नहीं चलता कि ये इंफॉर्मेशन किसकी है, तो हम भी उसका यूज़ कर लेते हैं। तो एक गलत प्रैक्टिस यहाँ पर बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किसकी इंफॉर्मेशन है और उसका यूज़ हम कर लेते हैं। तो एक इशू यहाँ पर जनरेट होता है, जैसे कि एक व्यक्ति को हम पहचान लेते हैं, 2-4 व्यक्ति में होगा, तो यदि वो भीड़ में होगा तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भीड़ में हम इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसी तरह से यदि इंफॉर्मेशन की मात्रा लार्ज है तो उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वेदर इट इज़
proper information or improper information, whether it is authentic or non-authentic information. Okay, तो बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं और इंफॉर्मेशन ह्यूज मात्रा में होने के बाद उसके जो स्टोरेज क्षमता है वह भी कम पड़ने लगती है। जैसे कि हर एक व्यक्ति के पास जो इंस्ट्रूमेंशन है, मीन्स से साधन है इंफॉर्मेशन स्टोरेज का या ऑनलाइन का, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, परचेज़ करना, ओके, फ्री कितने अवेलेबल है, तो उसमें हर एक इंफॉर्मेशन का सेव करना ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और फिर स्टोरेज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि ईमेल के इशू अभी आप देख रहे हैं कि आपके एक या दो ईमेल होगा तो उसमें बहुत सारे मेल आते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट मेल होते, अनइम्पोर्टेंट मेल होते, तो आप उस अकाउंट को ठीक तरह से हैंडल नहीं करते तो फिर वह मेमोरी फुल हो जाती है। आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ होगी, कंप्यूटर में फ़ोटो होगी तो उस पर स्टोर होते, बैकअप उस पर जाता है। तो सर्टन स्टोरेज आपको दिया गया है गूगल के द्वारा, यदि आप जीमेल यूज करते हैं तो फिर कुछ समय के बाद बैकअप, फ़ोटोज़ और आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उससे वो भर जाता है और फिर आपको हर बार मैसेज आता है ईमेल पे कि वो स्टोरेज इज़ फुल, यू कैन परचेज द एक्स्ट्रा स्टोरेज फ्रॉम द गूगल। तो आपका जो स्टोरेज है जो आपको फ्री दिया गया था वो फुल हो चुका है ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड बाय यू ऑन योर ईमेल। तो यदि आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन का स्टोर आप अपने ईमेल पर नहीं कर सकते। जो आपको फ्री दिया गया था वो फुल हो चुका है और यदि आपको ज़्यादा अमाउंट और ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन अपने ईमेल पे सेव करनी है तो आपको स्टोरेज परचेज करना होगा गूगल से। तो इस तरह से मैसेज आपको आते हैं, राइट। फ़ोन पे भी सेम इसी तरह का मैसेज आता है। यदि फ़ोन की मेमोरी आपकी फुल हो चुकी है, स्टोरेज फुल हो चुका है तो आपको मैसेज आता है क्लाउडिंग से, मोबाइल क्लाउडिंग से कि आपकी जो मेमोरी फुल हो चुकी है, यदि आपको ज़्यादा स्टोर खरीदी करना है तो आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टोरेज के हर जगह पे इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चालू करते हैं ईमेल से या मोबाइल से, तो हमारा स्टोरेज वहाँ पर क्रिएट होता है या स्पेस क्रिएट होता है। ओके, तो इशू किस तरह से है इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के, और किस तरह का सॉल्यूशन हम वहाँ पर देते हैं। सो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज लीड टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड जिसे हम लार्ज मात्रा बोलते हैं इंफॉर्मेशन की, स्पोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ओके, in addition, developing global standard for large scale of information sharing is made difficult by different language content and context and global information। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे सोर्सेस है इंफॉर्मेशन के, तो उनके द्वारा इंफॉर्मेशन जब जनरेट होती है तो लार्ज एक्सटेंट में होती, कॉन्टेक्स्ट में होती है। द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पैकेजिंग, selling, highlights several kinds of rights management issues. First, personal rights of privacy may be stretched or violated as information gathering behavior both online and offline is tracked and aggregated. Second, ease of transmissions and copying of electronic information makes copyright enforcement difficult in global contexts where copyright laws vary between countries. It is difficult to know what law should apply. Okay, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की इश्यूज हमें
इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्रिएट हो सकते हैं। द फर्स्ट पर्सनल राइट ऑफ प्राइवेसी मे बी स्टेज और वायलेटेड एज इंफॉर्मेशन गैदरिंग बिहेवियर बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन इज ट्रैक्ड एंड एग्रीगेटेड। पहला जो इश्यू आता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग प्रकार की एक जगह पे और ट्रांसफ़र होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर एक व्यक्ति बंदा यूज करता है। जैसे कि हमने कॉपीराइट की इशू के बारे में यहाँ पर देखा, तो प्राइवेसी के बारे में भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, और सेकंड इज ऑफ ट्रांसमिशंस एंड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मेक कॉपीराइट इन्फोर्समेंट डिफिकल्ट। तो इसमें कॉपीराइट की इन्फोर्समेंट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इसमें आता है। In a global context where copyright laws vary between countries, it is difficult to know what laws should apply. तो सेकंड इशू हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि ऑनलाइन का ज़्यादा यूज होने से और ऑनलाइन पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा ट्रांसमिट होने से, ट्रांसफ़र होने से, तो इसमें कई सारे इशू आते हैं। जैसे कि प्राइवेसी का एक इशू हमने यहाँ पर देखा, दूसरा इशू आता है कॉपीराइट का। तो ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कौन सी और नॉन ऑथेंटिक, ये हम यहाँ पर समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन हो जाता है। इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट वायर कॉपीराइट लॉज वैरी बिटवीन कंट्रीज, इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हाट लॉज शुड अप्लाई एंड व्हाट शुड नॉट बी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो कॉपीराइट एक्ट होते हैं उसमें वैरायटी हम देखते हैं। फिर यूनिवर्सल कॉपीराइट एक्ट न होने की वजह से इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती, कौन सा यूज करें या कौन सा नहीं यूज करना, ये हमें समझ में नहीं आता। तो इस रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और फाइनली इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप दैट आर फिजिकल object, and while object can be owned in perpetuity, electronic information is often sold on access, right to use and basis, creating difficulty in archive. तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है। ऑफलाइन इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति की होती है, ये हमें पता होता है, लेकिन जब वो ऑनलाइन जाती है तो पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो माइग्रेट होने की वजह से इंफॉर्मेशन पायरेसी हो जाती है, तो हमें पता नहीं होता कि ये इंफॉर्मेशन किसकी है या किसकी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम या दिक्कत इसके संदर्भ में आती है। फाइनली द बिजनेस मॉडल एसोसिएट विद सेलिंग इंफॉर्मेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इंफॉर्मेशन जनरेटिंग और सेलिंग का जो बिजनेस है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है चेंजेस की वजह से। उसमें चेंजेस होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यू पेमेंट मेथड हैव लीड टू सिस्टम वेयर द इंफॉर्मेशन इज पेड फॉर नॉट कैश but by the users willing to view advertising. The availability of small piece of electronic information has led to the development of small transactions, aggregations and payment system. Information companies have been developing joint venture strategic alliances are between companies who maintain separate and competing business. Finally, as new technology are developed inside or outside information industry, those new technologies drive to creation of new information product. तो इस तरह से अलग अलग इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है हर दिन, और अलग अलग प्रकार के इश्यू हमारे सामने आ रहे हैं। Those new technologies drive to the creation of new information product. The information industry is in state of flux in which the information guarantee is constant change. While the function required to handle information and product have not changed, and the technology jobs produce products are quite different than they used to be. Understand future the information industries understand constancy
of the function required, aware of the issue and affecting progress the industry, and the realization that industry flourished by saying staying abreast of change and technology information। तो इससे ही हमें पता चलता है इंफॉर्मेशन का फ्यूचर क्या होता है इंडस्ट्री का। तो जब इश्यूज हमारे सामने आते हैं नए नए इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की, तो हम उस तरह से टैकल करते, किस तरह से उसे टैकल करते, सॉल्व करते हैं, और फिर इस इशू के बीच में भी हम किस तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री को स्टेबल रखते हैं, करते हैं, इस पर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर डिपेंड होता है। जो न्यू ट्रेंड आ रहे इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, जो न्यू इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उसे किस तरह से हम हैंडल करते हैं, किस तरह से हम फेस करते हैं, इश्यू को किस तरह से टैकल करते हैं, इस पर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर डिपेंड होता है। ओके, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, रोल क्या होता है, और इश्यू और फ्यूचर क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त की। ओके, और अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेम टॉपिक यहाँ पर लिया है। तो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। इंफॉर्मेशन सर्विस होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की। इंफॉर्मेशन डिवाइस कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। और रिसर्च इंडस्ट्री किस तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का पार्ट होती है। लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सेंटर, उसके बारे में चर्चा की। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, जैसे कि हर एक इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री या नॉन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, यानी कोई भी इंडस्ट्री हो उसका एक नेचर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंस इसका होता है। ओके, तो अलग अलग टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ही टॉपिक पर अलग अलग लेसन नोट्स हमने यहाँ पर कलेक्ट करने का प्रयास किया है। आप इसे पढ़ने के बाद जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हो। तो ओवरऑल हमने इस पर चर्चा की है, लेसन नोट के द्वारा भी चर्चा की है, लेसन नोट पर भी चर्चा की है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे, और हमारी ओन लैंग्वेज में भी इसका इंटरप्रिटेशन देने का हमने यहाँ पर प्रयास किया है। तो फिर एक बार यहाँ पर इंफॉर्मेशन जनरेटर दिया है क्वेश्चन एंड आंसर के स्वरूप में। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो इसमें कौन सी चीज़ें आई है, यहाँ पर दी है, जैसे कि रिसर्चर है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं, रिसर्चर आते हैं, इन्वेंटर आते हैं, इनोवेटर्स आते हैं, ऑथर्स, राइटर्स, प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, एग्जीक्यूटिव्स, ये सभी इसमें आते हैं। ओके, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इसमें आती है, और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इसमें आते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोवाइडर कितने हैं सभी इसमें दिए हैं, नेम यू कैन रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, कौन सी इंफॉर्मेशन सर्विस के टाइप्स है। लाइब्रेरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस जिसे हम बोलते हैं, डोमेस्टिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, और बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्विस। ये तीन प्रकार प्रमुख होते हैं। और इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट में कौन आता है, इसमें हम देख सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो प्रॉफिट मेकिंग कौन से होते हैं, जो इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, वो रिसर्च करके इंफॉर्मेशन बेचते हैं या उसका यूटिलाइजेशन बड़े प्रोडक्ट में करते हैं, उसको हम प्रॉफिट मेकिंग इंफॉर्मेशन सर्विस कह सकते हैं। और नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो लाइब्रेरीज होती है, पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह, उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता कि बिजनेस करना वगैरह, तो उसमें आती है। तो सभी पॉइंट्स पे हमने यहाँ पर
इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री पे चर्चा करने का प्रयास किया है। और एक बार हम फिर से इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री काम करता है, उसका फंक्शन क्या होता है। इंफॉर्मेशन की भी इंडस्ट्री हो सकती है। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हमने कभी प्रोडक्ट करके देखा नहीं है या उसके बारे में सुना नहीं है। नॉन प्रोफेशनल जो है लोग, हमने तो कई बार सुना होगा, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल है उन्होंने कभी सुना नहीं कि इंफॉर्मेशन भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि उन्हें वो पता नहीं होता। नॉलेज भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। ये नॉन प्रोफेशनल लोगों को पता नहीं होता। ओके, इस तरह से सभी पहलुओं पर हम